discipline. Please, ma'am, start. Good evening, Thank ma'am. you. Good evening, everybody. Hope everybody is fine. Yeah. Good evening, ma'am. Good evening. ठीक है. Okay. We'll start with है ना. थोड़ा सा फिर टाइम हो जाता है. जी मैम. हाँ जी. Okay. Now we are going to start with the community nutrition, and we are actually proceeding towards the DNHE 3, and today I'm going to discuss with the second chapter of the DNHE 3, which is community nutrition and the health. Yesterday we discussed about the community because we really wanted to understand about the community. To understand community nutrition, the understanding of the community is a prerequisite actually. So here the objectives of this community nutrition, and along with how it is associated with the health, community nutrition. ओके, कम्युनिटी न्यूट्रिशन का मैंने आपको मतलब बताया था कि इट्स अ ग्रुप ऑफ, it's not the nutritional status or the nutritional status of a single person. It's a community nutrition, like when we analyze the nutritional status of people together. Okay, that's why we have discussed yesterday about the community, like the group of the people and how they are mutually dependent upon each other, like whether the neighbors, whether the one sector, whether one country and all, everybody is dependent upon each other for the one and another thing. Okay, for one reason and another reason, and many more reasons can also be associated with for the dependency of the community persons. Okay, whether for the work, whether for the things, needs, okay, and everything, and the rights and all, for the discussion, everything. And these things I have discussed yesterday. So yeah, I really wanted to make you understand that the community nutrition, when the people are dependent upon one kind of the nutrition, or in a group of the persons, like in a particular area, the people, they eat together, not eat together, and they are, I mean, they eat like-minded dishes. I mean, similar kind of the dishes, like not like-minded. Obviously, they are like-minded when they're living together in the community, but similar kind of the dishes. Like in Punjab, we are living together, we are eating some kind of the dishes, and when you move to the south, and then the persons, they are eating like different kind of the dishes. So ये आप mind में रखिए कि इस तरह की dishes हम discuss करेंगे, इस तरह की nutrition, but इसका aspect different है. We are not going to discuss about the dishes, about the food type, and about the area, but it's kind of a, with the discussion you'll come to know that what is the community nutrition. But you can keep in mind, yesterday we have discussed about the community, so we are discussing about the community nutrition, like-minded, similar, and how this nutrition works, and along with how it is associated with the health. Like this is, इसमें हम concepts जो लेंगे, that they would be the physical health, mental, social, spiritual, and how it is related to the health, like. And we'll discuss about the health only if we have to discuss about the community nutrition. So first we have to discuss about the health also. So according to the World Health Organization, this is one of the major organization, USA based, and many of the definitions and many of the nutritional level values and all, disease status and all, we actually I mean, talk about the definitions which are actually provided by the World Health Organization. The scientists, various scientists, they are associated with this World Health Organization, because in these days, when everybody is talking about the COVID-19, you must have heard in the news also this name of this organization. Okay, so health. So who has defined the health as a complete state of a physical, mental, and social well-being, and just merely not the absence of the disease. Like when you don't have disease, that's not the only thing that you are healthy. This is not the thing. Like most of the people, they have in their minds this kind of a concept that if you are not suffering with some kind of a disease, or the smaller and the bigger one, whatever you kind of, any kind of a disease, so that means we are healthy. No, it's both ways, like it's hand in hand. Like there should be, and there must be the absence of disease plus the state of complete uh, complete mental, physical, and a social well-being. Okay, ये जो definition बनी है, this is
आफ्टर काफ़ी रिसर्च के बाद बनती है. सो विल डिस्कस अबाउट दैट कि कैसे सिर्फ अगर डिजीज की एब्सेंस है दैट मीन्स कि वी आर हेल्दी, बट कंप्लीट सोशल, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग कैसे देखेंगे. सो ठीक है. सो ट्राई कीप इन माइंड दैट वी हैव टू सी दैट वी आर हेल्दी इफ वी आर मेंटली, सोशली एंड फिजिकली वेल. ठीक है तो एंड देन definition in this given above reveals as a health is just the complete well-being and not just the absence of the disease. Again and again they have explained in your book that this is actually not the absence of the disease only. So now we'll discuss about, like they have discussed about the physical health, so what we'll see how we are physically healthy. सबसे पहले हम देखेंगे कि physical, because physical health है that is very easy to monitor. ओके, वेरी इजी टू मॉनिटर. लाइक आपको क्या करना फिजिकल हेल्थ में, आपको क्या रखना है, आपको सबसे पहले व्हेन यू हैव अ फीवर, जस्ट टेक एन एग्जांपल, सिंपल ले लो. अगर आपका 98 से 99 या 100 भी फीवर हो जाता है, देन आल्सो यू विल सी दैट आपको फेस से पता चल जाता है द पर्सन इज नॉट फीलिंग वेल. ओके, चाहे थोड़ा सा फटीग्ड है, मतलब 100 फीवर होना इज नॉट अ वेरी बिग एंड बैड हेल्थ कंडीशन, बट दिस इज एक्चुअली शोज दैट द पर्सन इज लिटिल बिट फटीग्ड. आप उसे पूछेंगे कि क्या थके हुए हो, कैसे हो. सो दिस इज द थिंग, जब हम देखने से ही पता चल जाता है कि फिजिकली हेल्थ. सो इट्स इजी टू डिटेक्ट. और अगर सिर्फ 100 फीवर पे भी अगर आप किसी का जज कर सकते हो, चलो अगर कोई जज नहीं करता, एटलीस्ट द पर्सन हु इज सफरिंग विद 100 फीवर, ठीक है, तो आप उसका उसको भी इंटरनली पता चलेगा. वो खुद तो जज कर ही सकता है, अगर कोई जज नहीं करता कि इतना स्मॉलर अमाउंट ऑफ 1-2 डिग्री रेज होने से टेम्परेचर, अगर किसी और को जजमेंट नहीं होती, लेकिन पर्सन को खुद तो जज होता है कि दैट यस आई एम नॉट फीलिंग सो गुड. वो बहुत बैड हेल्थ में भी नहीं होता है, ठीक है, बट स्टिल ही और शी कैन फाइंड दैट आई डोंट फील लाइक एक्टिंग, और एक्ट मतलब करने में थोड़ा लो फील करता है, एंड देन इट डजंट वांट टू आई मीन वर्क, एक्टिविटी लेवल लो हो जाता है, स्टेमिना लो लगता है, फटीग्ड लगता है. ठीक है, एंड देन थोड़ी सी मेडिसिन लेने से जब वो नॉर्मल आता है, देन ही और शी वुड बी ओके. सो मेरा कहने का मतलब ये है कि फिजिकल हेल्थ, अगर उससे थोड़ा सा 102 तक बुखार हो जाए, 103 हो जाए, तब तो हर कोई जज करता है और बेड पे आ जाता है बंदा. ठीक है ना, थोड़ा 2-4 डिग्री देखो बढ़ने से कितना फर्क है. 98.4 से उससे क्या है, 2 या 3 डिग्री बढ़ता है, 4 डिग्री बढ़ गया 102 तक आने में. Even then the persons they feel like they are in a bad health just for the raising of the temperature, body temperature only. They actually need a medicine like antibiotic. They must need the antibiotic, and you should give some antibiotics so the fever should not go so much more than that. ठीक है, तो उससे भी आगे आ जाती है. सो क्या होता है कि आपका एकदम से पेल होनी शुरू हो जाती है स्किन, या फटीग डेड. अगर कोई और डिजीज हो, सपोज अलोंग विद द, एक्चुअली जो फीवर है ना, I'll tell you that fever is not actually a disease. It's actually a presence of some other disease. I mean, this is an indication of. जब आपको फीवर हो तो आपको रीजन फाइंड आउट करना पड़ता है. You need to find out that reason, that why you have a fever, because it's an indication of one particular kind of a disease is present. Okay, फीवर इज एक्चुअली इंडिकेशन. सो साइंस क्या होते हैं फिजिकल, जो हम इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, कि फिजिकली हेल्दी नहीं है. ठीक है, यानी लाइक क्लियर स्किन अगर हो, उसकी स्मूथ स्किन है, देन इट्स फाइन. इफ समथिंग इज देयर, तो स्किन पे भी नजर आता है कि स्किन का टेक्सचर ऑब्वियसली गेट्स चेंज्ड व्हेन यू आर नॉट फीलिंग फिजिकली वेल. ब्राइट लस्ट्रल आईज एंड हेयर फ्रॉम मसल से भी पता चल जाता है. ठीक है, और कोई किसी तरह के लीजन्स हो, या फिर फर्म या गुड पिंक गम्स नहीं हो, आई मीन टूथ की क्वालिटी से, टूथ के टेक्सचर से, गम्स के टेक्सचर से. ठीक है, और पोस्चर से भी पता चलता है. अगर बंदा फटीग्ड है, बीमार होगा, सो उसके पोस्चर से भी पता चलता है. अगर एपिटाइट से गुड से, इफ यू आर हेल्दी, यू आर वर्किंग, like you'll feel good appetite, like you want to have breakfast and then timely dinner and then timely requirement of the lunch के बाद timely requirement of the dinner is also you feel, everybody feels. Even if you, अगर कोई बीमार है तो उसकी appetite की जो feeling है, that also gets changed. ठीक है, although they might be feeling so good appetite, or they might not feel like eating anything or at all.
ठीक है, और हैबिट्स अगर उसकी रेगुलर हैं दैट्स फाइन, लाइक बाउल मूवमेंट्स और एंड यूरिन एंड पर्स्पिरेशन एंड भूख की एंड स्किन एपिटाइट एंड एवरीथिंग, ठीक है, अगर ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज वो भी सब इरेगुलर हो ही जाती हैं, ठीक है। इवन यूरिन का कलर चेंज होता है, फीकल मटेरियल का कलर चेंज होता है, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, आपके माउथ का टेस्ट चेंज हो जाएगा, आपके गम्स का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, आपका नेल्स का कलर चेंज होगा, मतलब ये सब में नहीं होंगे। There are actually the physical appearances associated with different kind of a diseases. Like even if you are suffering with the anemia, then अब सबसे पहले क्या होगा, आपकी आईज का कलर भी अंदर से थोड़ा पेलिश हो जाएगा, एंड यूरिन का कलर भी चेंज होगा, एंड स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई और डिजीज है उसमें किसी और तरह के सिम्टम्स, लाइक आई एम डिस्कसिंग all these symptoms, but they are not associated with one kind of the disease. Like different kind of diseases have different kind of the physical appearance changes as symptoms. Okay, this is we are discussing about just the physical appearances, okay, which are easy to notice. जब आप देखेंगे किसी को तो बड़ी इजीली नोटिस हो जाता है कि ओके यू आर फीलिंग सिक, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या आता है, मेंटल हेल्थ। अच्छा, अब मेंटल हेल्थ जो है दिस इज वेरी डिफिकल्ट एंड क्वाइट कॉम्प्लेक्स टू डिटेक्ट, ठीक है। समटाइम्स क्या है कि आपको मेंटल हेल्थ कैसे होगा, आप जस्ट वैसे ही सोच के देखिए अपने माइंड में, फिजिकली तो आपको नजर आ रहा है ना, मेंटल तो किसी का नजर नहीं आ रहा। इफ द पर्सन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ही माइट बी मेंटली अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है वो, ठीक है, बट वो बैठा तो नॉर्मल है आपके सामने, ठीक है, उसका फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल नॉर्मल है, बट देन अगर वो बात ही नहीं कर रहा है, कुछ कोई उसके सामने कोई ऐसी चीज नहीं की जाती है जिसको वो रिस्पॉन्ड करे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इज मेंटली अनस्टेबल। और अगर वो, तो मैं बहुत मेंटली अनस्टेबल की बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा जो मेंटली अनस्टेबल होते हैं ना, दे बिहेव लाइक थोड़ा मेंटली अनस्टेबिलिटी के साथ ही जब वो बिहेव करते हैं। तो लेकिन क्या है कि जब आप अगर थोड़ा कोई हो, इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, ओके, जैसे सिंपल आपको एक और चीज बताती हूँ कि अगर आप बिल्कुल फिट हैं, ठीक है, फिजिकली, एंड खाना पीना सब आपके बाउल मूवमेंट्स, यूरिन की मूवमेंट्स, स्वेटिंग की मूवमेंट्स, आपके एपेटाइट के टाइमिंग, सब कुछ तो ठीक है, बट फिर भी समटाइम्स यू आर अंडर सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेस, you are under some kind of a strain because of any of the reason, because this is life and you'll find so many 100 of or 200 or 1000 kind of a reason. Sometimes the reason is quite intense, sometimes the reason is very low, but ऐसा होता है कि जब reason थोड़ा कम होता है तो you'll feel little bit low, but जब reason बहुत intense आ जाता है, कोई mental health like any kind of like business related, personal related, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, personal होंगे reasons या आपके प्रोफेशनल रिलेटेड रीजंस होंगे, दो ही तरह के रीजंस होंगे जो आपको स्ट्रेस या स्ट्रेन क्रिएट करेंगे, ठीक है, एंड देन यू वोंट फील गुड, सो दैट मीन्स कि यू आर नॉट फीलिंग मेंटली गुड। सो इसको एक्चुअली डिफिकल्ट है बहुत ही मेजर करना। सो उससे भी क्या चेंजेस आती हैं, कैन यू इमेजिन कि उससे चेंजेस क्या आती हैं? ऑब्वियसली अभी तो बंदा ठीक ठाक बैठा था, अभी बैठे हैं, अभी अभी किसी की ना कोई बैड हेल्थ की न्यूज आ गई, किसी की डेथ की न्यूज आ गई, किसी के बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स की न्यूज आ जाती है, या किसी की इमोशनल कोई बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो गई है या व्हाटएवर, ठीक है। तो ये सारी मैंने बातें की हैं, आई हैव गिवन यू द एग्जांपल लिटिल बिट नेगेटिव, समटाइम्स दे कैन बी पॉजिटिव, लाइक कोई 20 साल पुराना फ्रेंड है, वो एकदम से सडनली आपके सामने आ जाता है, देन यूल फील मोर एक्साइटेड टू, ठीक है। एंड देन वैसे हम मेंटल हेल्थ को या फिजिकल हेल्थ को हमेशा वी टेक इट एज ए नेगेटिव सेंस, वी हैव टेकन एज ए नेगेटिव एग्जांपल, ऑलवेज वी गिव, बट दिस इज नॉट लाइक, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ द बीपी, मतलब बीपी का मतलब ये होता है कि वो नॉर्मल से वेरिएट कर रहा है, चाहे वो डाउन जा रहा है चाहे वो अप जा रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर बीपी हाई की प्रॉब्लम है देन ऑल्सो यू हैव अ हाइपरटेंशन, लेकिन अगर बीपी लो है देन ऑल्सो यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ द हाइपोटेंशन, ठीक है। सो दैट मीन्स यू हैव अ ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, चाहे वो लो होने की है चाहे वो हाई होने की है। सो इसी तरह से मेंटल हेल्थ है, समटाइम्स यू फील लाइक समथिंग which gives you low kind of a feeling, but sometimes some reasons come in front of you suddenly like you feel up, ठीक है। सो दैट मीन्स आपके दोनों कंडीशन में जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो थोड़ी डिस्टर्ब होती है, डिस्टर्ब आई मीन अगर तो पॉजिटिव सोचें देन वी डोंट यूज दिस डिस्टर्ब वर्ड बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव वर्ड, सो वी डोंट यूज द नेगेटिव वर्ड, बट होता तो है ना कुछ, ठीक है। बट ये है कि अगर आप नेगेटिव फीलिंग आती है देन यू फील लिटिल बिट लो, लाइक यू डोंट फील लाइक, अपना अपना दोनों कंडीशन में, इवन यू आर हैप्पी देन यू फील लाइक स्टार्ट
feel like dancing. But if you feel low, something negative comes across, some negative news or something negative comes in front of you, then you feel low and you don't feel like getting, you don't feel like talking. But जब आपके सामने कोई बहुत ही खुशी की खबर आती है, then you feel like that you should dance. And then obviously दोनों चीजें, दोनों ही में आपका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है. एंड दोनों ही कंडीशंस में व्हाट हैपेंस, लाइक आपका बीपी का भी चेंज हो जाता है, आपका मेंटल स्टेटस, हार्मोनल बैलेंस सब चेंज होता है, एंड बीपी का भी चेंज होता है. ठीक है, तो बीपी का भी चेंज होता है. तो एंड देन व्हाट हैपेंस कि समटाइम्स देन आपके पास बहुत खुशी, समटाइम्स फियर, समटाइम एंगर, समटाइम jealousy, समटाइम I mean all these feelings actually goes on your mind lane, and then they give you different kind of a feelings, different kind of a BP, different kind of a hormonal status. And this actually I mean now you can understand that this is actually mental health. This all related to the mental health, because everything is going in your mind, and it is also disturbing. or डिस्टर्बिंग की जगह अगर आप उल्टा कोई पॉजिटिव वर्ड यूज करना चाहें तो इट्स अप टू यू. सो वो एक्चुअली वो डिस्टर्ब ही कर रहा है नॉर्मल से. ठीक है, सो वो कितना कर रहा है, कितनी, कई बार क्या है कि कोई खुशी की कोई बात आई, वो किसी एक के लिए तो छोटी है पर दूसरे के लिए बहुत बड़ी है, और किसी के लिए कोई नेगेटिव चीज आई, वो एक के लिए बहुत छोटी है, दूसरे के लिए बड़ी है. तो इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल, हाउ दे टेक, हाउ दे बिहेव in that negative or the positive situation. Even if they are physically fit but they behave, ये एक इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, एवरीबडी टेक्स, हर बंदे का एक हार्मोनल सिस्टम है, हर बंदे के सीरोटोनिन और जो भी हार्मोन्स हैं, ठीक है, एपिनेफ्रिन है, वो घबरा जाते हैं. समटाइम्स इसका पहले से बीपी था तो थोड़ा और हो जाएगा, बट पहले से बीपी वाली चीजें हम नहीं लेंगे, बिकॉज वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट द फिट फिजिकल हेल्थ. तो ऐसे लोगों में मेंटल हेल्थ पे क्या अफेक्ट होता है. सो दिस इज काइंड ऑफ, आई मेड यू अंडरस्टैंड, आई थिंक आई मेड यू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन नॉट एक्चुअली मेजर द मेंटल हेल्थ, बिकॉज ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन भी आ गई देन ऑल्सो. ठीक है, और उसके बाद ये होती है मेंटल हेल्थ, जिसको हम कभी भी डिस्कस नहीं कर सकते. इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन, समटाइम्स यू आर, इफ यू आर हेल्दी फिजिकली देन यू फील वेरी गुड मेंटली. ठीक है, बट समटाइम्स, बट ये 100% नहीं हो सकती. फिजिकली फिट तो यू कैन कीप इट योर सेल्फ फिजिकली फिट. ठीक है, बट मेंटली आप कभी भी आपको 100% फिट नहीं रख सकते. वो लाइफ है तो वो ऊपर नीचे चीजें होंगी, बिकॉज वी आर लिविंग इन सम कम्युनिटी एंड वी आर लिविंग विद फैमिली एंड वी आर into some profession and we are into some emotional relationships also. So किसी इमोशनल बॉन्डिंग के साथ भी कुछ होता है, या आपकी करियर के साथ कुछ होता है, या आपके घर में कुछ होता है, या आपकी बिजनेस के साथ कुछ होता है, then you feel little bit low, and sometimes when you get raised then you feel something good. So I have explained you good I mean mental health. So this is not easy to measure. Now coming to the social health. सोशल हेल्थ में भी एक्चुअली अगर आप कम्युनिटी को बात कर रहे हैं ना, इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट द कम्युनिटी, सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सोशल हेल्थ ऑल्सो. सोशल हेल्थ में क्या है कि सिंपल चीजें, कि अगर आपको सोशल वेलबींग का तो एक मतलब है, वो तो जस्ट आ जाता है कि इफ यू आर डूइंग गुड, इफ यू हैव अ सफिशिएंट मनी, इफ यू हैव अ गुड हाउस, इफ यू हैव अ गुड कार, एंड इफ योर फैमिली इज डूइंग गुड. ठीक है, जबकि वो हमेशा नहीं हो पाता, वो किसी टाइम हो पाता है, एंड अप्स डाउन्स आर ऑलवेज देयर. एंड सोशल, and while living in one kind of a society and living in one kind of a community, it's not 100% mandatory that always at every time social health would be okay. It's just like the mental health. ठीक है, sometimes it will be good, sometimes it will be low, sometimes it goes up. लेकिन क्या है कि आपकी belongingness, ठीक है, या फिर आपकी फैमिली आपको रिकॉग्नाइज करती है, एंड समटाइम्स आपकी बिलोंगिंग है कि आपकी फैमिली आपको बिलोंग करती है, ये फीलिंग आप में भी है, and you belong to that particular family, वो है. ठीक है, and then उसमें क्या है कि आपके नेबर्स के साथ भी आपके हैं, they also show some belongingness, they also recognize your personality and you also give them importance. ठीक है, जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, obviously when you move out of your house, तो आपको कोई पीछे से याद नहीं कर रहा है, and when you enter into your house nobody gives you welcoming addresses like hello, hi and all. And then when you move out of your house, even your neighbors, when they don't greet you, like they make your faces and move around, ठीक है, they start looking towards some other side obviously.
So this is also, and this also happens in the offices, this also happens in the shops, this also happens in the markets, this also happens with the relatives when you move to different places, and if you go to some family relationships. So this is also the social health. And if you have the healthy, and this believe this cannot be maintained 100% always. You all are grown up, so you can this is regarding the social health, and you can explain it in your words. Like, this is simple to explain, but this is complicated to understand actually. Now we are coming to the spiritual health, and this is also I mean little bit complicated kind of. Okay, because nobody can measure that how individuals are spiritually connected. I mean, this is connected to, I mean, you can give the different definitions, and this is also kind of I must say that this is a debatable topic actually, and you can debate like anything for such a long time, longer and longer times. But this is actually debatable because everybody actually belongs to some different kind of religions, and everybody can explain that this is much better, this is much better, this is much better. अगर ये मंत्र पढ़ लो तो ज़्यादा आपको मिलेगी शांति, या what you do other time. And in different religion, that morning and evening prayers, they give most of the satisfaction, but in sometimes more than 2 or 3 times they give you much satisfaction, or different timing pe jab aap pray karte ho, then it gives the maximum satisfaction. So it is also entirely dependent upon, really believe that it is also entirely, this is quite personal, and it is different, and it entirely depends upon the individuality only, that how it is connected to the Almighty. ठीक है, whether it has its shape और नॉट. समटाइम्स दे डिस्कस, कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई कहता भगवान है ही नहीं है, कोई कहता मुझे उसमें दिख गया, कोई उसी में दिख गया. सो spiritual kind of, like, is in your book that this is the genuine desire to help, to be assistance. like, इसमें क्या है कि अगर आप में स्पिरिचुअल हेल्दी होते हुए अगर आप में कोई डिजायर, और वो जेन्युइन डिजायर डेवलप हो जाती है ना, कि आपकी असिस्ट करने की, कम्युनिटी में रहने की, ग्रुप में रहने की, हेल्प करने की गरीबों को, या कोई गरीब नहीं भी है बट उसको टाइमली आपकी हेल्प की जरूरत है. सो वी कैन से दैट थिंग इज स्पिरिचुअल. ठीक है, अगर आप में हेल्प करने की, लोगों का दुख दर्द समझने की, और कमिटमेंट है असिस्टेंस की, एंड कमिटमेंट है टुवर्ड्स योर ड्यूटीज, एंड कमिटमेंट है टुवर्ड्स योर ऑब्लिगेशंस, लाइक, देन यू कैन से, अगर आप साइंटिफिकली सोचो तो देन यू कैन से, बिकॉज हर रिलीजन में यही होना चाहिए कि इंसान की हेल्प करे और टाइमली हेल्प करे, ये सब चीजें. सो दिस इज ऑल्सो. लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्शन की बात करें, स्पिरिचुअली कनेक्शन करने के बाद कनेक्टेड तो बहुत हैं, बट सोसाइटी एंड कम्युनिटी में कोई गिविंग ही नहीं है, ठीक है, गिविंग का एटीट्यूड ही नहीं है, तो देन आई मीन आपके इसके ऊपर डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं. मेरे व्यूज में तो ये है कि फिर ही और शी इज नॉट एक्चुअली स्पिरिचुअली हेल्दी. ठीक है, वो तो फिर सेल्फिशनेस हुई ना. वो तो मुझे लगता है कि अगर कोई स्पिरिचुअली कनेक्टेड ना भी हो, अगर वो इसमें कर रहा है, अगर लोगों की हेल्प कर रहा है, उसमें कमिटमेंट है लोगों को ये असिस्ट करने की, और ड्यूटीज है, अपनी ऑब्लिगेशंस को समझता है वो, ठीक है, देन ही और शी इज क्वाइट गुड स्पिरिचुअल हेल्दी पर्सन. लाइक, यस, वन ऑफ द पर्सन, आप कह रहे थे कि हॉस्पिटल्स में आजकल ऑब्वियसली कोविड-19 के दौरान बहुत ही है, लेकिन आपको पता है कि दिस इज द सोशल डिस्टेंसिंग और ऑल, बहुत सारी चीजें हैं. सो आउट ऑफ फोर जो एग्जांपल्स आई हैव गिवन टू यू, लाइक फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड द स्पिरिचुअल हेल्थ, इसमें से ना सबसे इजी जो है दैट वी कैन एक्सप्लेन द फिजिकल हेल्थ ओनली, जो कि आउटर अपीयरेंस से यू कैन जज. ठीक है, सो जो जितनी भी स्टेजेस है ना, ये मेयरली फिजिकल, मेंटल एंड सोशली, ये क्या है कि एक डेफिनेशन तो जरूर दी है, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट एनी पर्सन हु एंजॉयज फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, ठीक है, along every time, at every moment, ठीक है, he or she can be physically healthy. और मैं आपको एक और एग्जांपल, if you see ना, if you want to discuss about the physical health, then I'll tell you that everybody can not be, अगर वो mentally थोड़ा सा भी disturbed है, अगर socially भी थोड़ा disturbed है, अगर spiritual health भी नहीं है उसमें, चलो spiritual को तो हम रख दें because this is a wide area, ठीक है, जिसको हम बहुत डिफिकल्ट है, इसके ऊपर तो बुक्स और कितना भी आप कह सकते हैं, ग्रंथों के ग्रंथ आप पढ़ लें, तो स्पिरिचुअल हेल्थ को मेंटेन करना और मेजर करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है. लाइक, वी कैन नॉट इवन मेजर द मेंटल हेल्थ, सो हाउ कैन वी मेजर द स्पिरिचुअल हेल्थ.
अपने अपने व्यूज हो सकते हैं, मेरे तो बहुत वाइड है इस पे, ठीक है। बट दिस इज, अगर आप चाहें, मैं वही बात कर रही थी कि अगर आप मेंटल एंड सोशल हेल्थ भी थोड़ी डिस्टर्ब है ना, इवन द पर्सन वाज फिजिकली वेरी फिट, अगर उसको मेंटली हल्का सा भी सोशल, कुछ भी सोशली होने से या बिजनेस को कहीं से भी उसको थोड़ी बहुत न्यूज ऊपर नीचे से आती है, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसकी फिजिकल हेल्थ उसी वक्त बिगड़ जाती है, उसी वक्त बिगड़ जाती है, बिकॉज ही और शी डजंट फील गुड। सो उसका इफेक्ट सीधा सीधा आपके न्यूट्रिशन पे पड़ता है। इवन इफ यू ईट गुड, but even if you are taking the healthy food, like you are taking the I mean healthy balanced food, your food was containing every kind of a balanced food and the nutritional valued food, पूरा nutritional valued था, but still even if you don't feel good, तो वो न्यूट्रिशनल फूड खाने का बिल्कुल कोई भी रिजल्ट आएगा ही नहीं, बिकॉज इट विल डिस्टर्ब। अगर तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ गई है ना, सीधा सीधा एग्जांपल बताती हूँ, आपके स्टमक में क्या है, HCl होता है, बट दैट वाज इन अ माइन्यूट और इन अ सर्टेन लिमिट्स। बट when you feel, I mean because of any reason, or you have heard something good or something bad, sometimes you don't feel like eating, अगर कुछ बहुत अच्छा सुन लिया है उसमें भी खाने की फीलिंग खत्म हो जाती है, sometimes you get a very bad news, then also you don't feel like eating, otherwise you are healthy। तो उससे क्या होगा कि आपकी एसिडिटी, गैस्ट्रिक शुरू हो जाएगी, और अगर आप फिर उसके बाद थोड़ा सा खाएंगे भी, जैसे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं खाओ, स्ट्रेस नहीं लेनी, ये नहीं करनी, एंड देन इवन इफ यू ईट और लिटिल बिट लोअर, थोड़ा अमाउंट भी अगर आप खाते हैं, देन ऑल्सो इट वोंट गेट डाइजेस्टेड प्रॉपरली। एक फूड स्किप किया, दूसरा फूड खाया, और वो भी कम खाया, रिक्वायर्ड वाला नहीं खाया, टाइमली नहीं खाया, एंड देन द nutrition would, or the digestion, I must say the digestion would be disturbed, एसिडिटी, गैस्ट्रिक एंड ऑल, वहीं से फिर एक दिन के बाद, दूसरे दिन के बाद, तीसरे दिन के बाद वो सारा गड़बड़ हो जाएगा, उसके बाद आप लो फील करना शुरू करेंगे। सो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं, आफ्टर वन एंड अनदर दीज स्टेप्स दे एक्चुअली डिस्टर्ब। सो फिजिकली फिट होना इज नॉट वन ऑफ द थिंग, मेंटली एंड सोशली फिट होना भी बहुत जरूरी है। और सो आपकी जो मेंटली एंड सोशली जो फिटनेस है ना, हेल्दी है या हेल्थ है, सो वो डिस्टर्ब होती रहती है, उसके साथ आपका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है या डाइजेशन जो है, न्यूट्रिशन तो नहीं कहते, न्यूट्रिशन तो यू आर अवेलिंग, न्यूट्रिशन तो घर में चीजें हैं वो है खाने के लिए, बट उसका जो न्यूट्रिशनल डाइजेशन है एक्चुअली दैट गेट्स डिस्टर्ब्ड एवरी टाइम, ठीक है, जब भी आपको होता है। दिस ऑल्सो हैपन्स, ग्रोन अप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस एक्चुअली एसोसिएटेड विद द हेल्थ, दैट इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन टू यू, लाइक डिफरेंट न्यूज, डिफरेंट वाइब्स, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिमुलस आने से, फ्रॉम द आउटसाइड, एक्सटर्नल स्टिमुलस in any way, whether it's positive or negative, it actually disturbs your physical health। सबसे पहले क्या, न्यूट्रिशन को डिस्टर्ब करेगा, नॉट द न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्चुअली डाइजेशन को डिस्टर्ब करेगा। आपका स्टमक का, इंटेस्टाइन का, अंदर का जो एनवायरनमेंट है, दैट वुड बी डिस्टर्ब्ड। और हार्मोनल सिस्टम जो है, वो एक दो हार्मोन्स हैं जो इमीडिएटली ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन में एंड ज्यादा पॉजिटिव सिचुएशंस में जो वर्क करते हैं, they'll get disturbed, actually get disturbed, which shows their effect on the nutrition or digestion actually। again I'm using words the nutrition नहीं, digestion के ऊपर, जो digestion के ऊपर इफेक्ट हो गया, फिर सारा सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो if the right food is consumed at right quantities by the person, it results in the malnutrition। like उसमें क्या है कि अगर कहते हैं कि अगर एक कोई पर्सन है ना, इफ द फूड इज नॉट कंज्यूम्ड इन राइट क्वांटिटीज, वो तो फिर एक मेल न्यूट्रिशन हुआ, ठीक है। तो मेल न्यूट्रिशन क्या है कि रिजल्ट इन इनएडिक्वेट एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ द फूड। समटाइम्स क्या है कि हम एक्सेसिव खा रहे हैं तब भी ओवर न्यूट्रिशन है। इफ यू आर नॉट टेकिंग आई मीन गुड क्वांटिटी और द लेसर क्वांटिटी ऑफ दैट फूड, देन मेल न्यूट्रिशन हो जाएगी, ठीक है। और फिर इनएडिक्वेट हो जाएगा, फिर एक्सेसिव, अगर मेल न्यूट्रिशन है, समटाइम्स वी स्टार्ट गिविंग मोर एंड मोर फूड कि जी इसकी डेफिशिएंसी है, इसकी डेफिशिएंसी है, फिर समटाइम्स वी हैव मोर इनटेक ऑफ दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ फूड, फिर वो ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है। सो दिस इज एक्चुअली समटाइम्स ना मेल न्यूट्रिशन जो है ना, वो वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बीपी की प्रॉब्लम है, तो वो लोअर बी हाइपो एंड हाइपर बोथ हैव। बीपी का मतलब ये नहीं है कि जस्ट रेज है या हाइपर है। इसी तरह से मेल न्यूट्रिशन इज रेफर्स टू द बोथ काइंड ऑफ अ कंडीशन। मेल न्यूट्रिशन दैट डजंट मीन दैट द लेसर काइंड ऑफ अ, कि कम खाया, कम न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन है, नो, दिस इज ओवर न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन इज द वर्ड
is used for the undernourished persons also and the overnourished person also. So for the obese persons also, we are taking, who are taking so much of a food, like they are getting deposited there, that food is getting deposited in their bodies, and then undernutrition वाले के लिए भी ये सब है. So undernutrition में होता क्या है कि आपको किसी ना किसी चीज की डेफिशिएंसी है, like vitamin A deficiency होगी, vitamin C deficiency होगी, then you start giving the A food and vitamin A containing foods, and C है तो you start giving the citrus kind of foods. लेकिन overnutrition में क्या है, तो obesity is one kind of the overnutrition's example. उसमें क्या है कि आप fat बहुत ज़्यादा ले रहे थे, obviously only then the person gets obese. When you start taking the fats, that fat, जो excessive fat है, that starts accumulating in your body, and that results in increasing the weight. ठीक है. अब अगर substantially पहले slowly and then substantially gradually, whatever you want to say, the weight increases, then the person becomes obese, and then again now we have to, फिर अब करना क्या है, तो अंडर न्यूट्रिशन हो गया, फिर ओवर न्यूट्रिशन हो गया, फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस हमें कैसे हम जज करें किसी का, ठीक है, जस्ट टू कैसे करें कि इसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है दैट्स अ गुड वन. ये कहते हैं कि ये वो सिचुएशन है, इट्स अ कंडीशन ऑफ एन हेल्दी पर्सन और एनी इंडिविजुअल जो इन्फ्लुएंस्ड है बाय यूटिलाइजिंग द फूड ऑफ द कंज्यूम. एक्चुअली क्या है कि इट्स नॉट द थिंग दैट यू आर taking healthy food. You can afford good food, you can afford good nutritional food, and you can afford the balanced food जिसमें सारे के सारे minerals, proteins, carbohydrates, minerals, water का content, and minerals के अलावा क्या vitamins and all, everything you can afford, and then you are taking too. ठीक है. But what happens if you cannot actually absorb that food? That food is not working in your body. Like you are taking, you can afford, you can have it, you are taking it, but that not gets digested and that's excreting as such. तो उसका क्या use हुआ? That's a mere wastage of the money and time and body. That means that something is going very bad in your body, so that you are not actually getting that food की absorption के बाद that food वो consume नहीं हो रहा. Actually consumption का मतलब खाना नहीं है. अगर वो food आप absorb कर रहे हैं, आपकी body absorb कर रही है, cells तक पहुंच रहा है, only then you can think that that food is consumed. अगर आपने consume कर लिया, खा लिया, and वो किसी use में नहीं आया, absorb नहीं हुआ because of any reason, reason can vary, and reason can be many, because of any disease, because of mental health, because of social health, because of social पॉजिटिव न्यूज, और मेंटली जो आपको थोड़ी डिस्टर्ब कर गई, खुशी दे गई, तो ऐसे मतलब कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप हेल्दी फूड खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और उसके जो वैल्यूएबल कंटेंट्स हैं दे आर गेटिंग एक्सक्रीटेड एज सच. सो दैट मीन्स दैट फूड इज नॉट यूटिलाइज्ड एंड फूड इज नॉट कंज्यूम्ड इन माई लैंग्वेज. ठीक है. आई थिंक दैट फूड इज नॉट कंज्यूम्ड. एक्चुअली फूड खाना इज नॉट जस्ट अ कंजम्पशन, उसकी एब्जॉर्प्शन है, वो एक्चुअली कंजम्पशन है. ठीक है. सो न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम कैसे देखते हैं? तो एक तो फूड जो है वो कितना हमने कंज्यूम किया, लाइक खाया, ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, उसको देखना है कि हमने ऑब्जर्व करना है कि इल हेल्थ को. एक तो हमने न्यूट्रिशनल स्टेटस किसी पर्सन का इफ यू वांट टू चेक, देन सबसे पहले देखो कि उसने फूड खाया, वो डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हो रहा है. फिर दूसरी हमारी ये है कि किसी तरह की इल हेल्थ तो नहीं है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लीडिंग गम्स, गम की हेल्थ से, लाइक माउथ से सबसे पहले शुरू हो जाएगा, उसकी हेल्थ को चेक करना, देन नीचे तक जाते जाते इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर, सबकी हेल्प आई मीन डिस्टर्ब. यस, समबडी इज टेलिंग, राम सिंह जी, कि यस स्ट्रेस में एसिडिक कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, तो अगर कोई मेडिसिन भी खा रहे हो, एंटीबायोटिक्स भी, तो आपका स्टमक का एक नॉर्मल फौना फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है, जो हम बाहर से आजकल वो भी लेते हैं ना, लाइक आप यू कैन हैव द कर्ड, लाइक एक को वो याकुल्ट जैसी आती है, दिस इज आल्सो टू आई मीन आपकी डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, बिकॉज वही जो चीजें हैं आपकी नॉर्मल फौना एंड फ्लोरा खराब हो जाता है, तो उससे डाइजेशन सीधी सीधी खराब होती है. दिस इज एक्चुअली हैपेंस विद सो मेनी रीजंस, लाइक आपका मूड स्विंग से, आपकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस से, आपकी खाना ना खाने से, आपका खाना स्किप करने से, या ओवर ईटिंग से भी. समटाइम्स नॉर्मल फौना एंड फ्लोरा तो ओवर ईटिंग से खराब नहीं होता, लेकिन क्या है कि वो अनडाइजेस्टेड भी तो रह जाता है ना, या फिर अगर वो डाइजेस्ट हो जाता है देन गेट्स डिपॉजिटेड. ठीक है. एंड देन इफ अ पर्सन डजंट कंज्यूम इनफ फूड,
रिच इन विटामिन सी। सपोज अब ये कि डेफिशिएंसी डिजीजेस की बात आ गई, अब ब्लीडिंग गम्स है, अगर आपने किसी का एग्जांपल ले लिया कि उसके गम्स ब्लीड कर रहे हैं, तो आपको पता होगा इवन इफ यू आर रीडिंग समथिंग, देन अगर किसी के गम्स ब्लीड कर रहे हैं ना, तो दैट मीन्स कि उसमें ना विटामिन सी की कमी होती है हमेशा, दैट पर्सन माइट बी deficient in vitamin C. So you can start giving the vitamin C. That means that person was not taking the food which was rich in vitamin C. So आपको vitamin sources देखने पड़ेंगे. Vitamin C के sources like citrus fruits they are very good. They possess very good amount of the vitamin C. So you can start giving them the vitamin C so that the deficiency could be inhibited or can be improved actually. And the nutritional status जो vitamin E deficiency है, that could be improved specifically for the vitamin C if the person has the bleeding gums. And then you have to, I mean, you have to observe like time to time, like you are giving the vitamin C and if the bleeding of the gums has stopped or not. ठीक है, तो आपको ऑब्जर्व भी करना है. ओनली देन यू कैन सी दैट द विटामिन सी हैज ऑलरेडी वर्कड. इफ द गम्स हैज स्टॉप्ड ब्लीडिंग एट ऑल, so that means you have given the vitamin C in a good amount, and then now the person is not feeling vitamin C deficient anymore. Okay, so nutritional status can be substituted with the term nutritional health. Obviously nutritional status is directly associated with the nutritional health. Like you can interchange these words also. Nutritional status can be interchanged with these nutritional health, because if the nutritional status is good, only then it could be the nutritional health. And if you say that some person is nutritionally healthy, then that means that word cannot, this can also be interchangeable with the nutritional status, because if the if the person is nutritionally healthy, that means that he or she must have good and up to the mark nutritional status. I mean that his or her nutritional status is up to the mark. So the nutritional status is referred to the group of individual in the society. And sometimes now we are talking about the community, because till now we have discussed about the individual, like with the society. How can the society and the positive and negative news or mental and social health कैसे disturb हो सकती है उससे. But now we are straightway coming to the community nutrition. What is community nutrition actually? These two terms, like healthy health and the community nutrition, इन दोनों को सॉरी इन दोनों टर्म्स को हम, कम्युनिटी न्यूट्रिशन को हम सेपरेटली एंड हेल्थ को हम सेपरेटली डिफाइन कर चुके हैं. एंड यू पीपल नो वेरी वेल दैट व्हाट इज न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. नाउ हमने अब सिंगल पर्सन का बात कर रहे थे नाउ, बट सिंगल पर्सन की भी नहीं, हमने थोड़ा फैमिली के साथ उसकी एसोसिएशन एंड ऑल. नाउ विल कम टू द कम्युनिटी न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कैसे होती है. आई मीन कुछ लोग कलेक्टिवली कैसे हेल्दी रह सकते हैं और उनकी हेल्थ कैसे ठीक रह सकती है, अप टू द मार्क रह सकती है, एब्सेंस ऑफ द डिजीज रह सकती है एटलीस्ट. मेंटल सोशल तो चलो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो अप्स डाउन हमेशा रहेंगी, बट एटलीस्ट फिजिकली हेल्दी की भी हम बात कर सकते हैं. सो ये को एग्जिस्ट करती हैं दोनों टर्म्स. ठीक है, सो देयरफॉर द डेफिनेशन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉलोड बाय द एलैबोरेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द कम्युनिटी न्यूट्रिशन. ओके, आई एम एक्चुअली एक्सप्लेनिंग द डेफिनेशंस, बिकॉज जो डेफिनेशन होती है ना, दैट इज एक्चुअली द line to line, word to word वही होनी चाहिए. ठीक है, so I just consult for the definition your book only. When you'll consult your books, you'll find those words in your books only. So I'm not speaking something like out of this context, like आपके syllabus से बाहर का कुछ. I'm not teaching you. I'm teaching you within and from your IGNOU books only. So community health, and मैं उसी steps पे जाती हूँ. I use sometimes my words also just to explain. ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ इज कंसर्न विद द हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन. कैसे होगा, वही है ना कि जितने लोग हो गए उनकी आई मीन चॉइसेस एंड टाइमली एंड मूड्स सारे डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट होंगे. सो इट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर टू एक्सप्लेन द कम्युनिटी हेल्थ. बट कम्युनिटी हेल्थ ये है कि द ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली like-minded in views and like-minded in the eating habits and like-minded, like they eat some similar kind of a food, they use similar kind of the masale, similar kind of the dalein, similar kind of the fulka. Like if you move to the south sides, they don't take the fulka of the wheat.
made from the wheat. They actually more prefer towards the South Indian, like sambar, idlis, and I mean they prefer rice more. So वो like minded group एक वहाँ हो गया community, एक पंजाब की लगा लो. I mean I'm just comparing with these two, taking the example, taking these examples. So क्या होगा कि कम्युनिटी क्या है कि इसके में वेरिड इंटरेस्ट हो सकते हैं. अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसकी कॉज, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनी डिजीज विच कैन अकर इन द कम्युनिटी. समटाइम्स लाइक कम्युनिटी न्यूट्रिशन में क्या है कि समटाइम्स क्या होता है कि ऐसी डिजीजेज होंगी कि एक कुछ खाना खाया या नहीं खाया या एक ही जगह से सामान लाए, उसको खा के जॉन्डिस हो सकता है. अभी काफी लोग जॉन्डिस से आई मीन सफर कर रहे हैं. एंड देन डायरिया हो सकता है. डायरिया इज अ वेरी कॉमन. जब कोई लोग कहीं भी खाते हैं ना इकट्ठा, तो काफी लोगों को डायरिया हो जाता है. डायरिया इज वेरी कॉमन. समटाइम्स अल्सर, लाइक उसमें बहुत मसाले थे, इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सोसाइटी या कम्युनिटी को वो नहीं सूट किया, सो एवरीबडी विल फील, बिकॉज इन वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ कम्युनिटी एवरीबडी ईट्स, ईटिंग हैबिट्स जो हैं इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ कम्युनिटी में दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. सो if one person eats different kind of food and the other person all eats, so they can, I mean, suffer from a similar kind of a problems too, like ulcers हो गया, या किसी को डाइजेस्ट नहीं हुआ, डायरिया हो गया. जॉन्डिस भी हो सकता है, इट्स लेस कॉमन. डायरिया एंड अल्सर्स दे आर वेरी कॉमन. ठीक है. एंड और भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि इस कम्युनिटी में एनीमिक प्रॉब्लम्स आ गई हैं, या फिर कुछ और अगर ज्यादा हो तो नाइट ब्लाइंडनेस की. बट नाइट ब्लाइंडनेस इज जेनेटिक डिजीज, but also obviously that can occur in a particular kind of a society. ठीक है, क्योंकि वहां पे लाइक माइंडेड है, रिलेटेड है, रिलेशन में ही है, तो जीन्स कहीं से अपने इफेक्ट दिखाएगा एंड देन द पर्सन कैन सफर. नाउ द कम्युनिटी न्यूट्रिशन, कहते हैं कि कम्युनिटी न्यूट्रिशन को कैसे जज करेंगे आप, वो असेस कैसे करोगे आप फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस. उसको क्या करोगे, आपकी फूड और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को लेना पड़ेगा आपको, उसके पॉजिटिव फैक्टर्स देखने पड़ेंगे आपको, फिर आपको पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में सोचना पड़ेगा कि इसको प्रिवेंशन कैसे करें और क्योर कैसे करें. समटाइम्स लाइक अगर आपको लगा कि डायरिया हो गया, सब लोगों को डायरिया हो रहा है, फिर इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है. मे बी द प्रॉब्लम इज विद वाटर, बिकॉज द वाटर दे कंज्यूम विद द फूड, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज नॉट गुड. देन यू हैव टू टेक द स्टेप्स टू remove that problem too. You have to actually certify or actually have to check the quality of the water the people in the community they are actually taking. Okay, then you have to पहले तो कॉज देखनी पड़ेगी, कहाँ से गंदा है. मे बी कहीं से कोई मिक्सिंग हो रही है, मे बी कंटेमिनेशन आ रही है, कहीं से पीछे से पानी ठीक आ रहा था, रास्ते में कहीं से कंटेमिनेशन इन बिटवीन हो गई है, एंड देन यू आर कंज्यूमिंग. So you have to remove that reason of the contamination from the supply, so that the fresh water should reach every community person, so that this diarrhea problem could be solved. So these kind of some kind of the manifestation occurs, like आपको फिर देखना पड़ता है कि community. So yesterday we have discussed like these kind of the problems can be solved by the group of the leaders, which you might have chosen to lead, like some kind of the retired persons. They can become the leader of that one kind of a particular kind of a community. Then this kind of the problem they can find out the reason, cause, and then they can they have to provide the cure too. I mean कुछ लोग बन के एक community में leaders बन के करके हैं, and वो उससे ही होता है कि आपकी I mean आपकी सलाह से, सम्मति से सब कुछ होता है. ठीक है. Now nutritional surveillance is one of very important term. What is the nutritional surveillance? Surveillance means you have to really check कि है क्या कम्युनिटी में. ठीक है. सर्वेलेंस कैसे रखेंगे कि एवरी पर्सन इज शुड नॉट सफर. अगर तो सफर कर रहे हैं, पहले कुछ हुआ है एंड द पर्सन स्टार्टेड सफरिंग, देन ऑल्सो यू हैव टू सर्वेलेंस करना पड़ेगा. एंड फिर दैट सर्वेलेंस शुड बी कंटिन्यूड फॉर सो मेनी टाइम, लाइक दोबारा वो प्रॉब्लम ना आए. दैट प्रॉब्लम शुड नॉट कम अगेन. लाइक one time at one stage the person they have consumed one kind of the thing, like मैंने water का example दिया, like the supply was very clean, but in the way somewhere near the society or near the community, then the one person when we are talking about one kind of a community, the supply gets contaminated from somewhere else, that something coming out of the pipe में कोई leakage थी, and जो इस community को water की storage आ रही है, and then some kind of a leakage that is getting into that supply of the water which was coming clear from the source, water source. Okay, but in between something happens that contaminated the water supply which are used by
for the drinking, even for the that particular kind of the community. But then you have to, I mean, the community leaders you are taking care of, ठीक है, उनको ये cause देखनी पड़ेगी, then they have to prevent too, उसके measures भी लेने पड़ेंगे, और cure करना भी है, और make sure भी करना that it has cured, because it was getting, because every person of the community, I mean, taking that water, and everybody started suffering with the diarrhea, and it was becoming like the serious problem, like everybody, whenever it takes the water, and gets a diarrhea, and when that gets infected with that contaminated water. But what happens then? They have to cure, and if you think that once it gets cured, but after that surveillance is also necessary. Like agar ek problem pehle aayi hai, that could come again too, but we have to make sure, or the community leaders, they have to make sure that it should not happen again, so that the water should not be should not get the contaminated, and so the contaminated water intake should be avoided, and the diarrhea could be cured, okay, in that manner. So this is called the nutritional surveillance. Nutritional surveillance means आप एक जो चीज consume कर रहे हैं nutritionally, obviously water is also a one major constituent of your food, and then आप उसकी quality को ensure कर रहे हैं. अगर कोई problem आई थी, then आपको ये देखना है कि वो प्रॉब्लम अब पहले आई, उसको ठीक करवा दिया, अब पहले डायरिया हो रहा था, अब डायरिया ना हो. सो दिस इज ऑल्सो, इस तरह का आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. सो न्यूट्रिशनल जो सर्विलेंस है, या वो भी एक पार्ट है कम्युनिटी न्यूट्रिशन का. ऑब्वियसली न्यूट्रिशन आपका स्टमक सारा अपसेट हो गया, बिकॉज वाटर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द. अगर आप कोई और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो कुछ और ले सकते हैं. मे बी कहीं से कोई वीट ली, इस बार इस कम्युनिटी के लोगों ने एक पर्टिकुलर जगह से वीट ली, एंड देन वो उस वीट से सबको प्रॉब्लम आनी शुरू होगी. दैट मीन्स दैट माइट, आपको पहले एक्चुअली सोचने में टाइम लग जाता है, आपको एनालिसिस करने में टाइम लगता है कि प्रॉब्लम है कहाँ. व्हेन यू स्टार्ट के एक जगह से लिया था तो वो भी हो सकता है, देन यू हैव टू रिप्लेस विद दैट कि अब ये खाना बंद करें, एंड देन फर्दर भी वहां से मत लो, बिकॉज the thing which has created a problem once, that can create a problem again too, that could create a problem again too. So you have to actually make sure that that should not come again. So इसके लिए हमें community diagnosis करना पड़ता. ठीक है, पहले आपने डायग्नोज किया कि ओके डायरिया प्रॉब्लम आ गई, या फिर किसी को जो वीट लिया उससे प्रॉब्लम आई है कंटेमिनेटेड वाटर से. पहले आपको लग रहा है कि डायरिया क्यों हो रहा है, एंड देन फिर आप देखोगे कि अगर यार देखो तो सही, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई खाने पीने की चीजों को देख रहा है, एंड कोई आई मीन वाटर को देख रहा है, और कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि डायरिया है वो तो आएगा ही आएगा. कोई पर्टिकुलर मार्केट से देख रहा है किसी ने क्या कंज्यूम किया. आई मीन आप सर्वे कर रहे हो घर घर जाके, जो कम्युनिटी लीडर्स की वी हैव डिस्कस्ड येस्टरडे टू, दैट कम्युनिटी लीडर्स या उनके मेंबर्स या फिर हर कोई को वो कहते हैं कि प्लीज अपना अपना खाने का बताओ, कब किसने क्या खाया, किससे क्या हुआ. सो तो वो एक प्लान बनाना कि आपको पहले तो सर्वे करना है, ठीक है, फिर इवैल्यूएशन करनी है एक्शन की. एक्शन मींस कि पहले आप प्लान करके उसमें से एनालिसिस कर लिया कि अच्छा ये तो पानी की सप्लाई से दिक्कत आ रही है, देन यू सी कि कहाँ से आ रही है. ठीक है, फिर जब आ रही है पता चल गया कि पानी से दिक्कत आई, डायरिया हुआ, सर्वे किया, पानी का पता चल गया, कंटेमिनेटेड वाटर है, फिर कंटेमिनेटेड वाटर कहाँ से आ रहा है, देन यू सॉ कि अरे बड़ी दूर जाके कम्युनिटी से थोड़ी दूर है, ये पाइप है, लीकेज है, वहां पे कंटेमिनेशन है. देन आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा प्लान कि नाउ यू हैव टू कॉल द प्लम्बर, या फिर आपको वाटर डिपार्टमेंट व्हाटएवर उनको आपको कहना पड़ेगा, एंड देन इट शुड बी रेक्टिफाइड, एंड इट शुड बी रेक्टिफाइड इमीडिएटली. एंड लेकिन तब तक आपको पानी पे भी बंद करना पड़ेगा कि प्लीज डोंट कंज्यूम, या फिर उबाल के, या उस टाइम तक जब तक वो ठीक नहीं होता, देन आपको बड़ा फैलाना पड़ेगा, सारा स्प्रेड करने पड़ेगा आपको नॉलेज की नहीं प्लीज वो वाटर मत लो, अगर लेना है तो या वाटर मार्केट से लाओ या कहीं और से कंज्यूम करो, या फिर उसको बॉयल करके ठंडा करके, whatever you take the measures when the water diseases comes, waterborne diseases comes. Okay, somebody is asking कि previous years के जो questions हैं उनकी क्लास लगाएं. we'll discuss with the sir कि इसके बाद अगर होता है तो then we can discuss the question papers to previous years. We'll see. So now you are ready to concentrate upon the identification of the factors which cause the nutrition and health problems to occur. ठीक है, सो आपको पहले तो आइडेंटिफाई, वही अगेन एंड अगेन वी आर डिस्कसिंग लाइक न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स जो कैसे हो रही हैं, फूड है, न्यूट्रिशन है, हेल्थ प्रॉब्लम्स को कंबाइन करके फिर देन यू आर डायग्नोजिंग द कॉजेटिव फैक्टर्स टू,
एंड देन प्रॉब्लम्स इंटरलिंक्ड कैसे हैं, रूट कहाँ है कॉज की, फिर वो कैसे इंटरलिंक्ड है, फिर उसको कैसे ठीक करना है, व्हाट मेजर यू हैव टू टेक, व्हाट एक्शन यू हैव टू, व्हाट एक्शन प्लान यू हैव टू फॉलो। तो इस तरह से आपको आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं दैट ठीक है वो आपको रिमूव करनी है। So some of the causative factors are educational, social, economical, cultural, agricultural, health related, etc. These factors are detailed here for your understanding. Like if we explain about the educational, like lack of awareness भी जो होती है लोगों में, एजुकेशनल प्रॉब्लम से भी आपको कम्युनिटी न्यूट्रिशन आता है कि समटाइम्स एवरीबडी इन द कम्युनिटी इज नॉट इक्वली एजुकेटेड, ठीक है। अगर एजुकेटेड है समटाइम्स दे आर आल्सो एडमेंट टू, दे डोंट लिसन एंड दे डोंट फॉलो योर एडवाइसेस। सो चलो ये है वो है, मतलब सुन के बात कर देते हैं, इसका तो ये इफेक्ट है, इसका तो ये इफेक्ट है, देन दे इफ दे डोंट फॉलो एक्चुअली। सो लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन मेक द पर्सन्स और चाइल्ड और हाइजीन की जो सैनिटेशन कंडीशन को है ना वो फॉलो नहीं करते। उसका एक रीजन जो मेजर है वो उनका एजुकेशनल स्टेटस भी होता है। इफ दे आर नॉट मच एजुकेटेड सो दे डोंट फॉलो एक्चुअली द सैनिटेशन कंडीशन या चाइल्ड की हाइजीनिक कंडीशन नहीं मेंटेन करते, फूड एंड न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखते, चाइल्ड केयर का ख्याल नहीं रखते। तो उन चीज़ों से भी क्या है कि इन चीज़ों से भी आपकी कम्युनिटी में एक न्यूट्रिशनल हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ता है। न्यूट्रिशनल हेल्थ जो स्टेटस है दैट ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड because of these reasons. Like social में क्या है कि sometimes वही overcrowding है, insanitary है, and then unhygienic. Obviously these things I need not to actually explain because you can see in these days in terms of the on the pretext of the COVID-19, like everybody lockdown है तो I mean forcefully they have to put into their houses, but जब भी lockdown होता है खत्म होता है the people they come out like anything, they don't follow the I mean you must have seen in the news also कि like कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई खाने का नहीं है, कोई हाइजीनिक कंडीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं, मास्क नहीं पहन रहा, कोई कुछ नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट हैज एक्चुअली given or educated, but I mean and I must say that these are also the uneducated person who are not feeling, who don't think that हमें भी हो सकता है, because they have yes my number is this Anjali, same number, okay. So these people actually are uneducated because they actually don't know about the COVID, what it can do and what it can cause or what harmful effects it can cause actually. So government is taking so much of the initiative to educate the people and every person. I think that these days every I mean low income status people also have mobiles in their hands and TV in their houses. Okay, everybody can afford these days, like small ones. Oh, but the government is giving messages also in TV news also, their education, but still the people of the community, even if you think that this country is a community, a big community, and the government is also educating, but the uneducated persons, because educated person कर सकता है but like yeah, one person is actually asking what we can do. I'm looking at the messages like persons their need के किस तरह से how we can educate the persons. Like देखो I don't think so, like if you in recent days अगर आप देखें कोविड का तो गवर्नमेंट ने I mean they have put their best efforts everywhere like people also they have started educating, and the TV and phone messages everybody, police is forcing, police चालान कर रही है, and then also so इससे ज्यादा बेटर अगर एजुकेट करना है तो हर किसी को साइंस नहीं पढ़ाई जा सकती। मुझे लगता है कि अगर किसी को ये बताया जाए कि दिस इज हार्मफुल, एक कोई आपको एजुकेटेड पर्सन बता रहा है हु इज अ वेल विशर ऑल्सो, तो मान जाना चाहिए वो बात, ठीक है ना। यू शुड फॉलो सम रूल्स एंड अगर आप सिनेरियो आप देखें तो आई डोंट थिंक सो कि कैसे समझाया जाए कोविड में। मैं हर किसी का नहीं कह रही हूँ बिकॉज कम्युनिटी में मेनी काइंड ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो जब हम एजुकेशनल की बात कर रहे हैं सो मुझे लगता है कि अगर एजुकेशनल स्टेटस ही कम होता है ना तो वही लोग नहीं समझते, तो उन लोगों को मुझे लगता है ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत होती है। उनको बैठ के जब तक थोड़ा सा डरा के ना समझाया जाए ना ओनली देन तब तक वो शायद ना माने। सो आप देखिए किस तरह से समझाया जाए, क्योंकि कोविड में मैं तो आई मीन आई हैव सीन द पीपल दे आर नॉट एट ऑल बॉदरिंग, दे जस्ट थिंक दैट उनको तो हो ही नहीं सकता शायद,
you are actually, you must agree with me, ठीक है. And then economically, अब क्या है कि एक economically if the person is poor तो वो देख सकते हैं, लेकिन कोविड में क्या है कि घरों में राशन पूरा ग्रोसरी पहुंची है, इवन बहुत बहुत भी पहुंची है. आई डोंट थिंक से कि कोई भूखे रहे होंगे लोग, बट स्टिल अगर हम कोविड को छोड़ के अदरवाइज देखें तो पुअर कल्चरल एग्रीकल्चरल यील्ड है या लो इकोनॉमिक कंडीशंस है, देन द पर्सन दे स्टार्ट सफरिंग, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस लो रह जाता है. कल्चरली ऑल्सो क्या है कि अपना ना एक एटीट्यूड बनाया होता है कल्चरली कि ये नहीं है, एक रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं, रिलीजियस बिलीव्स हैं, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स डाइट्स. लाइक ये खाना है, ये नहीं खाना है, एक कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड है जिसको बना लिया कि नो वी कैन नॉट, जबकि उसमें बहुत शायद ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज हो, दैट कुड बी वेरी आई मीन वेरी वैल्यूएबल फूड, बट वो रिलीजियस बिलीफ की तरह, ठीक है. और एग्रीकल्चरल है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्टेन फूड, देन तो वी कैन थिंक इकोनॉमिकली लो स्टेटस है, एग्रीकल्चरल की जो प्रोडक्शन है वो बड़ी सीड लो क्वालिटी का था तो उसमें उतनी क्वालिटी का अच्छा फूड नहीं है, देन तो वी कैन थिंक. बट ये जो रिलीजियस बिलीफ होते हैं, मतलब एटीट्यूड्स होते हैं टूवर्ड्स वन काइंड ऑफ अ फूड और अनदर काइंड ऑफ अ फूड, जो अनएजुकेटेड होते हैं, जो एजुकेशन लेवल लो है, they don't follow the instructions. So इन चीजों के कारण जब न्यूट्रिशनल स्टेटस, कम्युनिटी न्यूट्रिशन जब अफेक्ट होता है ना, that's a bad part on our society members also and the persons also. बट गवर्नमेंट क्या कर रही है, एजुकेट करने के लिए भी फ्री सब कुछ किया तो है, एजुकेशन एक मिनिमम लेवल तक, मिडिल क्लास तक फ्री एजुकेशन है एटलीस्ट, तब तक ये समझ तो आ ही जाता है कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी को या न्यूट्रिशनल स्टेटस को हमने कैसे रखना है, मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, इतनी साइंस तो 8 तक आ ही जाती है, मिडिल क्लास तक. So these are all efforts which actually the government is also doing to maintain the community health, because for maintaining the community nutrition, like schools में free food है एंड वहाँ पे फूड न्यूट्रिशन है. ऑब्वियसली थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे होती हैं कि फूड पूरा पहुंचता है नहीं पहुंचता, उसको अच्छे से कुक किया जाता है, बट गवर्नमेंट इज डूइंग सम, बीच में ऊपर नीचे होती हैं चीजें, बट ऑल दीज एफर्ट्स आर मेंट फॉर मेंटेनिंग द कम्युनिटी हेल्थ, फॉर आफ्टर मेंटेनिंग द community nutrition. These two terms are go in hand actually. So health क्या है, lack of, I mean this is community nutrition and health है, उसमें क्या है कि lack of awareness है of the safe drinking water, ठीक है. water source common illness है, malnutrition है, these are actually a kind of the problems जो commonly होती हैं, like drinking water source है, ठीक है, और कॉमन इलनेस है एंड मेल न्यूट्रिशन है, ये मेन कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं अनएजुकेशन से या जो कम्युनिटी न्यूट्रिशन जब अफेक्ट होता है उससे, ठीक है. सो कॉमन टॉपिक्स जो हम डिस्कस करना चाहते हैं जिसके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से है, जैसे कॉमन स्टेटस है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का, लाइक प्रेवलेंस ऑफ द मेल न्यूट्रिशन, कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस और ग्रुप ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय द मेलन्यूट्रिशन. ये कहाँ से पॉसिबल सोर्स आपका होगा, क्लिनिक्स जाओ, हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी, पॉलीक्लिनिक, जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज हैं, एवरीथिंग, बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, बड़े बड़े चीजें होती हैं वहाँ, होर्डिंग्स होती हैं एंड बिठा के भी दिखाया हुआ होता है कि लिख के बोर्ड्स पे भी, और बिठाए होते हैं काउंसलर्स, यू कैन कंसल्ट देम. और जो मेन ऑक्यूपेशंस, टाइप ऑफ हाउसिंग, सोशल, इसको भी वाटर एंड सैनिटरी कंडीशंस के बारे में भी है, लोकल लीडर्स हैं, पीपल जो कम्युनिटी में हैं, हॉस्पिटल्स में भी बताया जाता है सैनिटरी कंडीशंस के बारे में, ठीक है. पब्लिक सर्विसेज में है कि काइंड्स ऑफ रोड्स, डिस्टेंस टू स्कूल, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब चीजें जो पब्लिक की जो सर्विसेज हैं, इफ यू वांट टू अवेल, तो आप अदर कम्युनिटी वर्कर्स से पूछ सकते हैं कि यस, अगर हमने पब्लिक सर्विसेज को करना है अवेल तो कैसे करें, ठीक है ना, ठीक है ना, तो कैसे करें, ठीक है. तो एक पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं, जैसे लाइक एवरेज साइज ऑफ द फैमिलीज कैसे मेंटेन करना है, फार्मर्स को बताना है, एंड विमेन की एवरेज एज कैसी होनी है, मतलब इन चीजों का अगर ख्याल रखना है तो जो सेंसस के डेटा से हम कर सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रुप्स में रखना है कि ये पॉपुलेशन इतनी थी 2 साल में, इतनी कैसे इंक्रीज होगी या इसमें इतनी कैसे कम हो गई, उसमें कोई रीजन अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे करना है,
इसको कैसे चेक करें रीजन, अगर बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रही है देन ऑल्सो यू हैव टू कंट्रोल कि ये जो पॉपुलेशन है व्हाई इट्स गोइंग अप इन 2 years, लाइक मोर नंबर, जो एक एक्सपेक्टेड नंबर होता है तो वो एक एक्सपेक्टेड नंबर से बहुत ज्यादा कैसे बढ़ रहा है, देन यू हैव नीड टू कंट्रोल। अगर एक्सपेक्टेड नंबर से बहुत कम हो गया कि लाइक डेथ्स ज्यादा होगी, देन यू नीड टू ऑब्वियसली नीड टू मॉनिटर कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, देन यू हैव टू सी। तो ये भी कम्युनिटी लीडर्स कर सकते हैं, या सेंसस डिपार्टमेंट एकदम से चेक करता है कि इसका सेंसस करने से ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में पर्सन्स की जो आपकी नंबर ऑफ पर्सन्स कम या ज्यादा होना ड्रास्टिकली, एक एवरेज तो होगा ही, सो दैट्स फाइन। बट अगर ड्रास्टिकली अप एंड डाउन जाता है देन सेंसस पर्सन्स हैं, सेंसस डिपार्टमेंट्स हैं, देन दे कैन, देन फिर उसके बाद वो कम्युनिटी पर्सन्स को कहते हैं कि चेक करें, ठीक है। तो उसके बाद है फूड प्रोडक्शन एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, हाउ पीपल दे गेट फूड, मेन क्रॉप्स का कहाँ से लेना है, लाइफ स्टॉक कहाँ से लेना है, सीजनल जो अवेलेबल फूड कहाँ पे मिलेगा, ईटिंग पैटर्न्स कैसे होने चाहिए, फूड के बिलीव्स एटीट्यूड्स की तरफ कैसे हमने उसको काउंसिल करना है, चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस को, ये जो चीज होती है ना, ये सारे जो कम्युनिटी पर्सन्स होते हैं, कम्युनिटी लीडर्स होते हैं, लोकल लीडर्स होते हैं, ठीक है। लोकल शॉप्स एंड मार्केट्स में आपको मिल जाएगा लाइफ स्टॉक एंड वो जो सीजनल चीजें होती हैं, लेकिन इनको कैसे यूज करना है या कौन बताए कहाँ मिलेगा, तो ये सब एक्चुअली क्या है कि कम्युनिटी में रहते कम्युनिटी के लीडर्स होते हैं, कम्युनिटी वर्कर्स होते हैं, देन दे actually I mean they can also transfer the knowledge about these things कि food availability है, food की hygiene है, या फिर उनको काउंसिल कैसे करना है फूड बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स के बारे में, ठीक है। अवेलेबिलिटी लाइफ स्टॉक कहाँ है, ये तो वेरी इजी है, लोकल शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं, एक शॉप से जाओगे दूसरे से पता चल जाएगा, या एक किसी से पूछोगे देन ऑल्सो। बट मेन चीजें क्या है कि कहाँ से मिले खाना, मेन, ठीक है, जो उसको बहुत जरूरत का चाहिए या फिर जो अनकॉमन चीज है वो। दूसरी बात है कि फूड बिलीव्स एटीट्यूड एंड चाइल्ड की फीडिंग हैबिट्स के बारे में कौन करे, ठीक है, अवेयर एजुकेट, तो वो इन लोगों के पास आप जा सकते हैं, लोकल लीडर्स के पास, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, आंगनवाड़ी हैं, कौन से स्कूल में डालना है, वहां पे क्या सीसी है, अगर मेल न्यूट्रिशन है देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर कॉमन फीडिंग पैटर्न्स, फॉर कॉमन फूड बिलीव्स, फॉर कॉमन फूड हैबिट्स एंड फॉर गेटिंग कॉमन फूड्स। अगर रेयर करना है कुछ की आपको कोई मेडिसिनल है या कुछ है ऐसी चीजों के लिए, देन यू हैव टू गो टू द डिस्पेंसरीज, आंगनवाड़ीज, स्पेशल के लिए कोई, ठीक है, नॉलेज लेने के लिए, काउंसलिंग के लिए। सो कम्युनिटी डायग्नोसिस अगर आप करते हैं कि किसी में ये सारी जो मैंने चीजें ली हैं उसमें डायग्नोस करना पड़ेगा कि हो सकता है community में every person doesn't possess that kind of a food beliefs and attitudes towards one kind of a food, that to have or not to have that kind of a food. It might be a group of the people in that particular community, so you can counsel. तो आपको वो community में diagnose करना पड़ेगा कि इस society में कैसी सी problem है, problem कैसी भी हो सकती है, like एक तो आप ले लो कि फूड बिलीव्स एंड एटीट्यूड है ऑफ सम ग्रुप ऑफ पीपल टुवर्ड्स वन काइंड ऑफ अ फूड, whether not to have and whether to have. Either they pressurize the people to have one kind of a food even if they don't like that. Otherwise, if anybody wants to have that food and that person must be pressurized not to have that food. So this happens because of the food beliefs and attitudes towards one kind of a particular kind of a food. और अदरवाइज कुछ ऐसा हो जाएगा कि द कम्युनिटी पर्सन दे डोंट बिलीव लाइक increasing the number of the food. I mean, like government is actually pressurizing that don't have more than 2 kids in one family. But some of the persons they don't I mean take care of having more than 5-6 children. So you have to really educate those persons. And sometimes क्या है कि pregnant women को कहीं जाने नहीं देना, आने नहीं देना, उसका mental status disturb करेंगे, psychologically disturb करेंगे उसको, because psychologically if the female is not feeling good, तो बच्चे पे सीधी की सीधी उसकी health पे फर्क पड़ता है। और कई बार sometimes क्या होता है कि जो एक बहुत common belief है, everybody knows, but I really wanted to make you just remind कि हमारे ना कहीं सुना होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो मदर का जो फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग होती है ना, वो येलो काइंड ऑफ का होता है मिल्क, तो वो देना नहीं है, उसको वेस्ट करते हैं। बल्कि ये इतना स्टूपिड थिंकिंग थी, बिकॉज उसमें एंटीबॉडीज का इतना अमाउंट होता है, दैट शुड बी गिवन टू द किड ऑल्सो। यही एक फूड बिलीफ है, जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स दैट फूड, कि लोगों को पता ही नहीं है कि हाउ वैल्यूएबल दैट फूड इज एक्चुअली।
सो वी हैव टू एक्चुअली एजुकेट, बट क्या होता है कि कई बार हम एजुकेट करते भी हैं, बट देन ऑल्सो दे वोंट लिसन, बट एटलीस्ट यू हैव टू मैनेज, आपको मेहनत करनी पड़ेगी फॉर सम ऑफ द कम्युनिटी पर्सन, सम ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट कम्युनिटी, सो दैट उनका जो कम्युनिटी का पर्सन, लाइक वी आर बिलोंगिंग टू सम कम्युनिटी, वहां पे एक ग्रुप, ऑब्वियसली आई मस्ट से दैट दीज पर्सन आर एक्चुअली अनएजुकेटेड, इनका एजुकेशनल लेवल बहुत लो होगा, जिसमें ऐसी सी बातें होती हैं, और इवन इफ यू रियलाइज्ड, इवन इफ यू हैव रिकॉग्नाइज्ड दोज पर्सन दैट दे आर लिविंग इन योर कम्युनिटी, गो एंड एजुकेट दोज पर्सन्स, like your daughter-in-law, your daughter is pregnant, and please give the first milk to the baby whenever he or she is born, so that you can, I mean, protect that person. You maybe you need to counsel them many times, but this is actually the service to the society and service to the community. If you do, then that means you possess some good kind of a spiritual health, because you really wanted to assist that person. So you'll feel satisfied also inside somewhere, if you do these kind of things, because these are actually, believe me, these are actually some kind of the very difficult practices. You cannot actually change the belief of that person, of any of the person, if they are actually following that belief from so many generations and so many, I mean, so many generation, you can say. So it's very difficult to actually change the thinking of those persons, but if you do, then obviously try to improve your spiritual health. Like chief problems, like sometimes of the just food storage, malnutrition and anemia, and the factors involved can be identified through this process. So, and now there are some kind of the suggestions which cause food and the nutrition problems. Though what are those actually? Like not enough food for everyone, especially for the young children. जब अब economically low status है, या agriculture production एक कम्युनिटी में हुई ही नहीं है, एंड एवरी कम्युनिटी पर्सन उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के ऊपर ही डिपेंडेंट था, सो दैट मीन्स द फूड वुड नॉट बी इनफ. I mean, availability of the food would not be enough, so that it should reach to every person. Like adult person, they can do, but for the young person who are growing children, actually, so that can also affect your nutritional status of the young person or the community persons. Like, or maybe sometimes the family or the community persons, they don't have enough money to buy the good food, या फिर जॉब्स नहीं है इन, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनफ एजुकेशन ही नहीं है, so that they can get good jobs, and they don't have good jobs, so they cannot buy good food because they are earning little less. So that can also affect the nutritional status of those community persons. Okay, so bad roads है, no transportation है, sometimes क्या होता है कि आपको बहुत दूर से अच्छी लेके आनी है क्रॉप, बट कोई बैड रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, एंड देन दैट अफेक्ट्स योर न्यूट्रिशनल स्टेटस बिकॉज ऑफ नॉन ट्रांसपोर्टेशन, आपके पास पहुंच ही नहीं रहा है वो फूड. और सबसे बड़ी बात है एक और, क्लीन एंड सेफ वाटर, विच आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर बाय गिविंग एन एग्जांपल. सो जो सेफ वाटर नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है, तो उससे वाटरबोर्न डिजीजेस बहुत होंगी. एंड अगर आप गुड फूड खा भी रहे हैं, देन हैविंग द नॉन क्लीन वाटर, अनसेफ वाटर वुड अफेक्ट योर हेल्थ. ठीक है, फिर उससे क्या होगा, इन्फेक्शियस डिजीजेज होंगी चिल्ड्रन में. पुअर फैमिलीज में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन होने से भी ये दिक्कत आ जाती है कि पुअर क्वालिटी ऑफ फूड भी फिर वो खा लेते हैं, इन्फेक्टेड फूड भी वो खाते हैं, बट दैट डजंट मीन इफ दे आर टेकिंग जस्ट टू सेटिफाई देयर डाइट और आपकी सेटाइटी फीलिंग लाने के लिए, बट दैट डजंट मीन दैट दे वोंट गेट अफेक्टेड. ओके, दे कैन गेट द इन्फेक्शन, एंड सब तभी यही होता है कि लोअर जो इकोनॉमिक स्टेटस लोग हैं उनमें वो जो आपका लाइफस्टाइल है, द पीरियड ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ है, वो कम हो जाता है एक्चुअली. ठीक है, और दूसरा है कि इसमें और भी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं कि अगर अब फूड है भी है तो पुअर हैंडलिंग है. अच्छा, स्टोरेज नहीं है फूड की गुड, तो वो जो स्टोरेज जिस फूड को चाहिए आप ले तो आए, उसकी स्टोरेज कंडीशन वाज नॉट मेंटेन, तो उसकी क्वालिटी वैसे ही डाउन हो जाएगी. दैट मीन्स कि पुअर हैंडलिंग होगी. और अगर आपके पास गुड फूड था एंड आप अपनी सैनिटाइज, आई मीन अपनी जो कंडीशंस, अपने हैंड भी वॉश नहीं करते हैं बिफोर टेकिंग दैट फूड, एंड योर हैंड्स वर कंटेमिनेटेड बाय वन रीजन और अनदर, you might have touched somewhere else, and then you are taking with the dirty hands that food, you are consuming that food with the dirty hands, then also you can say that that food might get contaminated with your own hands.
and then it would be affecting your health. Then in proper weaning practices, this is also one of the major reason. Like अब क्या करना है हमें, अगर इस चीज़ों से हमें ऊपर निकलना, then we have to develop a plan and then need to action on that plan. फिर उसको बाद में check भी करना है कि whether that's working or not. सो अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमें, स्टेटिंग क्लियरली कि क्या अचीव करना है हमें। अगर देखना है कि वी आर लिविंग इन वन सोसाइटी, we are living in one community, we are part of one community, and we have to analyze the problems at least in that community too. Then we have to understand कि analyze तो कर लिया, अब understand करना है कि क्या है ये प्रॉब्लम, बेस क्या है इन प्रॉब्लम्स का। फिर हमें डिसाइड भी करना है कि अब एक्टिविटीज क्या करनी है, फिर उसके लिए एक्टिविटीज करनी है, फिर उसके लिए मटेरियल भी क्या चाहिए हमें, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए। फिर हमें आइडेंटिफाई भी करने हैं, जो लोग काम करेंगे वो आइडेंटिफाई करने हैं, जिन लोगों के ऊपर काम करना है, ठीक है। फिर हमें टास्क देनी है, जॉब्स डिवाइड करनी है कि कौन सा बंदा क्या काम करेगा, कौन सा क्या काम करेगा। फिर टाइम प्लान भी बनाना है, कितने टाइम फ्रेम में ये काम हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम और एग्जैजरेट ना हो। आई मीन आई एम नॉट टेकिंग एनी एग्जांपल ऑफ दैट प्रॉब्लम, आई एम जस्ट टेकिंग वेगली दैट आइडेंटिफाई वन काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम in your community and you really want to eradicate that problem from your society, then you have to actually think about that. You have to make a plan for that. You have to see for the materials which need to be which could be needed to eradicate that problem, and the persons of that if you need the manpower actually to execute that plan which you have made, okay, and that could be made by the persons of the community leaders which you have selected, which have actually we have discussed. So इवेल्युएशन करना पड़ेगा प्लान का। इवेल्युएशन के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, आपको पॉइंट ऑफ व्यूज कुछ माइंड में रखने पड़ेंगे, कम्युनिटी वर्कर्स का ध्यान में रखना पड़ेगा, कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ अदर वर्कर्स जो आउटसाइड हैं उनकी जरूरत तो नहीं है, और क्लियरली एंड फ्रैंकली बताना पड़ेगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा, खुद भी होना पड़ेगा, लोगों को भी करना पड़ेगा, यस कन्विंस भी करना पड़ेगा, काउंसल भी करना पड़ेगा that yes we need to eradicate this problem. So completely giving ठीक है, completely giving both strong and weak points आपको convince करना पड़ेगा, उसके positive and negative points both you need to discuss, and जब आप discuss करेंगे तो लोगों को convince करेंगे, ये सब चीजों को actually takes time and it should be done by some kind of a leaders who really want to work for the community and want to make the society healthy. एंड फिर एक्शन में लाना पड़ेगा, फिर एक्शन लाइक उसके बाद फिर आपको रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे, आप फॉलो कर रहे हैं, वेदर दैट एक्शन प्लान इज वर्किंग और नॉट, वेदर द पर्सन्स आर फॉलोइंग और नॉट। यू हैव टू रियली फॉलो आफ्टर दैट एक्शन प्लान, ठीक है। उसके रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे, मिस्टेक्स तो नहीं हो रही हैं, अगर मिस्टेक्स हो रही हैं फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा, एंड फिर उस मिस्टेक्स को भी हमें इरेडिकेट करना पड़ेगा, और फिर ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि नाउ यू शुड नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स एक्चुअली, ठीक है। एंड देन सेव टाइम भी बचाना है, एंड सेटिस्फेक्शन भी आपको होनी चाहिए और लोगों को भी सेटिस्फाई करना है। येस इफ यू हैव स्टार्टेड something to do or some problem to eradicate from one particular kind of a community, so आपको दिखाना भी पड़ेगा कि yes अगर we if we have done this, so this problem or regarding the nutritional status or health related problem could be eradicated from this one kind of the community, and we can maintain the community nutrition and by this kind of the practices, and we can maintain healthy social and spiritual mental health, and we can at least try to do this. And with this I stop, I finish with this chapter, community nutrition and health. Tomorrow we'll discuss the another chapter. Thank you for listening. Thank you, ma'am. Yeah, thank you Rohit. Okay, thanks. Thank you. Harpreet, Jeevan Jyot, Kajal. Okay.